idam jnanamupaśyatya mama sadharmyam agataha sarge api nopajayante pralayena vyatatanti cha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendent nature which is like my own nature. Thus established, one is not born at the time of creation nor disturbed at the time of dissolution. So this is Krishna is going to explain to Arjuna transcendental knowledge. So when he is explaining this knowledge, spiritual knowledge, Krishna is telling the benefit. If we generally in the society we are developing academic material knowledge, how to bend iron, how to cut wood, the different kind of knowledge we are studying in the society. Correct? We are studying different kind of knowledge in society. Now the result of this knowledge will not help me. Will not help me from any kind of spiritual benefit. This knowledge is just for maintenance of the body. Its value ends there. It has no more value. It has no other value. But spiritual realization as it develops will show so many wonderful symptoms. And one of the symptoms person will develop is that, in principle, first let us discuss. He will develop jnana vairagya. He will develop attraction to the world and develop detachment from this world. Symptom. How do you know we are spiritually developing? We see becoming more and more attracted. Like Prabhupada mentioned in the purport, there is something called spiritual variety. The more and more person become attracted to the spiritual variety, and more he become disinterested in the material variety. Bhakti pareshanubhava virakti anyatya syat. If somebody is developing in bhakti, means virakti is coming parallelly. Bhakti aa raha hai to virakti bhi aane ka. Bhakti aa raha hai, how do you know? Attraction to the Lord is developing. Virakti means we are disinterested in the variety of the material world. We become disgusted to the variety of the material world. So it's very nicely said actually. As we are advancing in Krishna consciousness, different symptoms develop. One of the symptoms develop is that the person develops inclination. It is said avartha kalatram. He develops an inclination every moment to do some devotion service to Krishna. If he is engaged in something and he is not doing devotion service to Krishna, he feels, what am I doing? Wasting my time. That is one of the qualities. Just like Rupa Goswami was in Vrindavan, avyatha kalatram is engaged, constantly engaged. The day should not be wasted. Constantly we should be engaged. Correct? We should see that there is no activity which is wasting my time. Activity is either engage the whole day actually. Therefore the Prabhupada has given the program. Somehow the mind has to remember Krishna. Somehow. Namagane yada ruchihi. He developed taste for chanting the holy name of the Lord.
He developed taste for hearing the Bhagavad Katha or Gita Katha. He developed Preeti Tat Vasai Sale. He developed eagerness to reside in a holy place. He developed eagerness of association of devotees. Like that, the different qualities naturally develop. Now Krishna in Bhagavad Gita is slowly raising the Bhagavad Gita by giving more and more transcendent knowledge. So why is it the knowledge of the three modes is there in the Bhagavad Gita? Because three modes means Maya. Tamoguna means Maya is very strong, Rajoguna little less, Sattoguna still less, but it is Maya. All the three modes mean Maya. Gudamai means Sattoguna, Rajoguna, Tamoguna. Maya means three gunas. All the three are Maya. Basically all the three are illusion. But Sattam Prakasha, Sattva leads to knowledge, and that can lead to spiritual understanding. So therefore it is not ignorance in that way, but still it is considered a material mode. It is not spiritual. But among all, Sattva is encouraged. In the whole chapter you will see. This chapter is actually, when you meet somebody new, you can always teach this chapter. Anybody can understand this chapter. Basically the three modes, just like we have childhood, youth and old age. Bhagavad Gita also says, no, what is it said? Kaumaram, Yauvanam, Jara. Therefore, three specific instances have been quantified. What are the three? Sattoguna, Rajoguna, Tamoguna. Just like childhood, youth, old age. There are unlimited stages in between. Correct? It's like we said, now we are in Nantur. Now you are in Kadri. Actually, there are a million in between. Mota we say. So similarly, Sattva, Rajas, Tamas, we are speaking mota. There are unlimited stages actually. You cannot say, somebody gave another example. When you call somebody Takla? When this much here, one stage. So similarly, one stage is called Rajas, one stage is called Sattva, one stage is called Tamas. The three stages of entanglement in the material world. Tamas means when the material desires are very strong and person develops lethargy in a system. Rajas means material desires are not so strong, but still strong, and person starts running to satisfy his fruitive mentality. There are a lot of material desires. I call that kind of bhakti. Actually, everything is bhakti. That degrades from bhakti to sakam karma yoga. A strong material desires, material affections, material attachment, and is running around, working hard. But it is not called pure bhakti yoga. It is called sakam karma yoga. Below that is not yoga. It is bhoga. Bhoga means there is no connection to the Lord. Person is working for his own hopes, ambitions. He is the center. That is bhoga. When the Lord comes in the center, that starts becoming yoga. Correct? See, we may be taking medicine, but the effect should be visible. So the effect first becomes visible. The Lord becomes center of his life. He is every day, he is thinking about the Lord, not about himself. If he is thinking about himself, he is bhogi, not yogi. Yogi means he is thinking about the Lord. So sakama karma yoga means he is still attached to his fruits of the work, his hopes and ambitions. That is sakama karma yogi. And therefore different yogas actually come. And when the both karma and jnana, the tendency for fruitive mentality, and so sakama karma yoga, how much it can take you? It can take you to only mode of passion. It cannot give you mode of goodness. You will only remain to mode of passion. The next is jnana yoga and nishkam karma yoga. They will make you touch sattva. Both of them will take sattva. But nirguna is only bhakti yoga. Only by bhakti yoga you will become nirguna. Therefore, in the end of Bhagavad Gita, Arjuna will ask this question to this chapter. End of this chapter, Arjuna will ask Krishna, how do you transcend the three modes? So what does Krishna says? Mamacha avyavicharena bhakti yogena. It doesn't say karma yoga, jnana yoga. Bhakti yogena sevate sagunana samitityaitana brahma bhuyai kalpate. If you actually want to be liberated from the three modes of Maya and want to come to the transcendental situation, which yoga you should do? Bhakti yoga. Not jnana yoga, not karma yoga. That will not help you. Okay? So we should understand this situation, that actually bhakti yoga will only help any individual. Karma yoga, jnana yoga are there. Just like when we are chanting Hare Krishna, how many of us are in Sattva-guna?
No, still Rajoguna, Tamoguna. No, I am chanting Hare Krishna. You are not transcendental. Chanting Hare Krishna will bring you to transcendental situation. But the shadow, you have to see where it is now. Where are you now? You say, are you still Tamoguna? Are you still Rajoguna? Just like you are taking medicine. Chanting Hare Krishna has the power to lift you from Tamoguna to give you Krishna Prem. That is the power of the Mahamantra. But we have to also perceive where it is situated. See, it is not that I am taking medicine. That's good. You are taking medicine. But you should also see what is the temperature now. So 3 modes you can see the temperature. Is the temperature 100? It is 98. Is it 96? We see by putting thermometer. Why do you see when you are taking medicine? अब दवाई लेते हैं तो टेम्परेचर क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? अभी बीमारी कम हुई या नहीं हुई, करेक्ट? तो हम लोग सब हरे कृष्ण मंत्र को दवाई के रूप में ले रहे हैं, तो हम टेम्परेचर क्यों देखते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्यों देखते हैं? दवाई काम कर रही है नहीं कर रही, करेक्ट? दवाई नहीं काम करी तो भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या हुआ, आपको कुछ बताइए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद, करेक्ट? दवाई इसमें इस मटेरियल वर्ल्ड में दवाई खराब हो सकती है, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रभुपाद जी से बहुत बारी भक्त लोग पूछने गए, प्रभुपाद जी क्या करें? प्रभुपाद जी बोले, देखो ये 5 चीज़ के अलावा छठा चीज़ नहीं है मेरे पास देने के लिए आपको। 4 नियम पालन करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, यही मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए कुछ एक नया फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसको हरे कृष्ण मंत्र बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट उसको सीरियसली करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं लेते। चलता है, लेकिन जब चलता है करते हो तो फिर देखो तमोगुण, और अरे हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं और यहाँ कृष्ण का प्रेम अनुभव होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए, करेक्ट? देखो प्रभुपाद जी से अगर दुखी हो तो मतलब माया आ गई, सुखी मतलब एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। सतोगुण का पहला लक्षण आदमी प्रसन्न मन होता है, खुश हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसा, व्हाट आर द स्टेजेस? जब हम हरि नाम का जप शुरू करते हैं तो स्टेजेस भागवत में लिखी हुई हैं। वो स्टेजेस प्रभुपाद जी जब शिप में बैठे थे याद कर रहे थे। हाँ, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु यभद्रानि विधुनोति सुहृसता। जब हम कृष्ण कथा को सुनने शुरू करते हैं तो क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन है। तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुण्य, भौतिक पुण्य नहीं है, लेकिन ये भौतिक पुण्य का भी बेनिफिट दे देता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु यभद्रानि, जिस दिल में जितनी भी गंदगी है विधुनोति सुहृसता, यू शुड वॉश। तो क्या मतलब हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा हूँ और विधुनोति तो हो नहीं रहा, तो ध्यान से जप करो और कंसंट्रेशन बढ़ाओ और कंसंट्रेशन बढ़ाओ। देन नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नैष्टिकी। जैसे दिल धोलना शुरू होगा, अभी 100% नहीं, 100% तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, बिकॉज एक्चुअली आत्मा कृष्ण प्रेम में बैठी है, अभी सोई हुई है। मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया तो कृष्ण प्रेम बाहर, जैसे बल्ब है उसमें आप पेंट कर दो तो कुछ दिखेगा बाहर? नहीं, पेंट निकाल दो तो पूरा लाइट बाहर आ जाएगा। तो आत्मा को तो एक ही चीज़ है, कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। तो ये गंदगी की वजह से अभी कृष्ण प्रेम बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो से 70%, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं 70%। नष्ट प्रायेषु, उतना क्लीनिंग हो गया थोड़ा, तो क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नैष्टिकी, भगवान का भक्ति अभी स्टैब्लिश होना शुरू होगा, निष्ठा आ गई है, कृष्णा है। देन किसी ने देखा तो है नहीं अभी कृष्ण को, विश्वास क्यों हुआ है? बिकॉज भक्ति भवती नैष्टिकी, क्योंकि थोड़ा इफेक्ट आया। नेक्स्ट, तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चय चेते एते अनावेदम सितम सत्य प्रसिद्धति। जैसे रजोगुण तमोगुण सिस्टम से निकलता है तो क्या होता है? काम, लस्ट और ग्रीड निकल जाता है, हाँ? और आदमी खुश हो जाता है। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई मुस्कुरा नहीं रहा मतलब रजोगुण तमोगुण है, और कोई रीज़न नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट, आचार्य लोग तो बहुत भगवान की सेवा के विचार में रहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऐसे नहीं है। आचार्य लोग को कभी कभी अलग स्थिति होती है, वो बहुत मेडिटेशन रहता है डीप। जैसे प्रभुपाद जी ऐसा नहीं हमेशा करके घूम रहते, अरे तो प्रसन्न मन है, अरे प्रसन्न मन नहीं, वो आध्यात्मिक उसमें वो भक्तों के बारे में सोच रहे हैं कैसे इस भक्त को दया करा जाए, उनका अलग विचार है। नेक्स्ट, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते स चर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, नाम जप करते रहोगे, नेक्स्ट क्या होगा? जितना दिल में डाउट है सब निकल जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, सॉरी ग्रंथि, ग्रंथि मतलब जितना नॉट है। अभी तरह तरह की अटैचमेंट है दुनिया में हमारा,
करेक्ट? इससे अटैचमेंट, उसका अटैचमेंट, जैसे अर्जुन नहीं बोल रहा था वो मेरा आदमी, मैं मेरे आदमी को कैसे बाण चलाएगा, मेरा आदमी मेरा आदमी, भिद्यते हृदय ग्रंथि, नॉट टूट जाएगा सारा। अर्जुन ने कृष्ण को सुना, उसका हृदय ग्रंथि टूट गया पूरा। आप कृष्ण को सुनो या नाम जप करो, बराबर है, ठीक है? तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय, बहुत तरह के डाउट है, सब निकल जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि दृष्टायवात्मनीश्वरे, ही अंडरस्टैंड्स द पोजिशन ऑफ द सोल एंड द सुप्रीम लॉर्ड। एंड देन नेक्स्ट, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, I forgot that in between. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते. When person is joyfully situated, that is after that tada rajas tamo bhava. When person is joyfully situated, what happens? वो भगवान को समझ पाता है, तो खुश रहना होता है। अगर खुश नहीं रहोगे तो भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए तो मैं समझा, जब डेथ होती है फैमिली में, भगवान के आगे नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि भगवान के आगे हमेशा मुस्कुरा के खड़ा होने का, खुश रहने का, है ना? मैं वृंदावन में देखा था, वृंदावन के लोग, वहाँ कुछ लोग हैं, वो यूपी के लोग मंदिर आते हैं, वो ताली बजा के हंसते हैं पहले जब दर्शन होता है, देखा आपने? भगवान के सामने उन्हें खुश रहने का ना। किसी को बड़े आदमी के जाते ऐसे जाते हो, मुस्कुराते ना सब लोग, हाउ आर यू, फाइन करते ना। तो भगवान के आगे भी खुश रहने का हमेशा। अरे उनका दुनिया इतने अद्भुत तरह से चला रहे, इतने अद्भुत तरह से, एक एक भगवान का हर के जीवन में जो कुछ हो रहा है इतना अद्भुत है। भगवान हर जीव को एक परफेक्ट वैकुंठवासी बनाना चाहते हैं, और एक एक जो भी कुछ हो रहा है किसी के लिए इतना परफेक्ट हो रहा है, हर मोमेंट हमको क्या परफेक्ट, लेकिन दिखता नहीं, समझ आता नहीं। जैसे हम महाभारत देखो, थोड़ा थोड़ा उनको बताते हैं ये इसलिए इसका हुआ, इसके इसलिए हुआ, करेक्ट? बट एक्चुअली भगवान का डिसीजन परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे दिखना चलेगा तो हम आपको हमेशा हमेशा आनंद में रहेंगे। क्या परफेक्ट, ओह ग्रेट, परफेक्ट। आप एक एक डीलिंग दुनिया में होता है परफेक्ट, टोटल अरेंजमेंट कृष्णा का परफेक्ट है, और वो ये सोच रहा है कि मैं इसमें कैसे अपना योगदान करूं, करेक्ट? ही इज ओनली सेइंग निमित्र मात्रे न भव सव्य सचिन। भगवान का प्लान चल रहा है। क्या प्लान है चैतन्य महाप्रभु का? पृथ्वी थे यथोआ थे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम। एक एक गांव में भगवान का हरिनाम होने का चैतन्य महाप्रभु का प्लान है। हमें कैसे इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता, बस, और खुश रहने का। किसी तरह कृष्णा हमको बताएंगे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एंड देन कृष्णा विल गाइड एंड थिंग्स विल मैनिफेस्ट। ठीक है, सो दिस इज सतोगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर है। नहीं सर, अपना सिचुएशन देखना चाहिए। हम सब लोग तमोगुण से ही शुरू किए। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में हम सब लोग तमोगुण में ही थे, करेक्ट? कोई है भाई सतोगुण से शुरू किया था? सतोगुण से शुरू किया था। तो देन हम लोग अभी जब हरि नाम जप कर रहे हैं, धीरे 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 हमारा इफेक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं बैलेंस शुड बी इन सत्वगुण। जो सुबह जप होता है इतना अटेंटिव होना चाहिए कि पूरे दिन मन सत्वगुण में रहे, नहीं तो सिचुएशन डेंजरस हो गई है। सब रोक दो, खाली जप करो। फिर अगर सिचुएशन रजोगुण तमोगुण में जाने चाह रही है तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि रजोगुण में चला गया मतलब मन इंद्रिय भोग के लिए उछल रहा है, किसी भी समय नियम टूटने वाले। तो इमीडिएटली सब काम रोक के ध्यान से जप करो, पढ़ो, भक्तों से सुरक्षा लो और आगे चलो, करेक्ट? और ऑलवेज अपने को किसी तरह कृष्ण की क्रिया में हमेशा बिजी रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे सुबह उठते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे हम कृष्ण का संग ले रहे हैं? मंगल आरती से कृष्ण का संग ले रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण की आरती हो रही है, तो उसको क्या कीर्तन संग हो गया, कृष्ण कीर्तन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम का संग मिल गया। फिर उसके बाद भागवत का, कृष्ण के भागवत का संग मिला। उसके बाद प्रसाद का संग मिला। उसके बाद कृष्ण की सेवा का संग मिला। पूरे टाइम संग 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 में रहो। माया बहुत शक्तिशाली है, थोड़ा सा चाहिए माया को एक रूप हो, और देखते रहने का कि एटलीस्ट बैलेंस हमारा, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, बैलेंस सत्वगुण में रहना चाहिए। सत्वगुण में रहता है मतलब आदमी हमेशा खुश रहता है। ठीक है, दुखी मतलब रजोगुण, और पागल मतलब तमोगुण। प्रभुपाद जी 3 स्टेजेस बोलते हैं। खुश मतलब सत्वगुण, डिस्टर्ब मतलब रजोगुण, पागल मतलब तमोगुण।
बोलता ना ये पागल है, मतलब तमोगुण। जैसे नहीं आया था वो पी के आता हमेशा एक लड़का, आपने नहीं देखा उसको, बड़ा वो पी के आता है। तमोगुण। रजोगुण मतलब, लेकिन तब भी तमोगुण से भी आदमी कृष्ण भक्त के, कृष्ण के चरण पहुंच सकता है, करेक्ट? ऐसा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सिचुएशन देखने का, टेम्परेचर हाई है तो मतलब उसको आईसीयू में हैवी डोज देने का मेडिसिन। रजोगुण में आदमी डिस्टर्ब रहता है, पागल नहीं है लेकिन डिस्टर्ब रहता है। जैसे आजकल लोग 20 घंटा लोग काम करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, डिस्टर्ब रहता है आदमी, करेक्ट? शांति ला कहते हैं ना, बोल शांति ला, शांति ला मतलब डिस्टर्ब, रजोगुण। बट बुरा काम नहीं करता आदमी, बट डिस्टर्ब, मेहनत करता है, रजोगुण। सत्वगुण में आदमी शांत हो जाता है, खुश, एवं प्रसन्न मनसो, मन इज वेरी जॉय, ठीक है, दैट इज सत्वगुण। सत्वगुण में इट इज वेरी इजी टू ऑफर सर्विस टू कृष्ण। सर्विस टू कृष्ण शुड बी ऑफर्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सत्वगुण। एंड देन उसके बाद भगवत भक्ति। हाँ, भगवत भक्ति comes above Sattva-guna. When person reaches Sattva-guna and understand I am not body, I am soul, is called a Brahmana. Sattva-guna is for Brahmana. Rajoguna is for Kshatriya, administrators. Brahmana means, it's just a name. Brahmana means intellectuals, teachers. They should be Brahmana. And Kshatriya, administrators. Rajoguna. They can do something, contribute, but they should be under the control of people who are in Sattva-guna, because he is dangerous. He has strong material desires. He should control the people who are non-material desires. And then Vaishya is now mixed of the mixed mode, Tamoguna and Rajoguna. And Shudra, Tamoguna. सोया रहता है, खाने के लिए खाली बाहर निकलता है. So Sattva-guna person wants knowledge, Rajoguna person wants money and power, Tamoguna person wants to sleep. तो कलयुग में जनरली तमोगुण सो गया है, जहाँ सब सो गए। रजोगुण में मतलब आदमी भागना शुरू करता है, कुछ मेरे को करना है जिंदगी में, मेरे को कुछ करना है, और उसको लोग बड़ा सबसे बड़ा मानते हैं। हमारे लिए वो कुछ नहीं है। उसके ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण में आदमी प्रकाश, ज्ञान, इज वेरी वाइज पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उसको कुछ पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहता सत्वगुण में। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, ड्यूटी। बट अबव सत्वगुण इज कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस में क्या रहता है? आदमी इज वेरी हैप्पी। जस्ट लाइक जपा भी आपके अलग अलग गुण में हो सकता है। तमोगुण में जपा हरे कृष्ण, कोई टेस्ट नहीं, मन नहीं जपा, हरे, सो गया। रजोगुण में जपा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इंद्रिय भोग का वस्तु ढूंढ रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत सुंदर है, हरे कृष्ण कृष्ण। रजोगुण में जपा, इंद्रिय उसको मेटेरियल वर्ड विचलित कर रहा है, तभी किसी तरह जप कर रहा है, अच्छा है जप कर रहा है, लेकिन अभी रजोगुण में है उसका। सत्वगुण में जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक एक शब्द ध्यान से सुन के जप कर रहा है, स्वच्छ मन से। एंड कृष्ण कॉन्शियस जप, वो जप रोक ही नहीं सकता, हरे कृष्ण हरे, उसको उसके जप का स्वाद उसके मुंह में आ गया, कृष्ण नाम का टेस्ट आ गया, अब उससे जप नहीं रोकता। जैसे हरिदास ठाकुर जप करते थे पूरे दिन और उसके बाद थोड़ा खाना खाते थे, ऐसा हम करेंगे ना एक दिन, 192 माला एक दिन करो, पागल हो जाओगे। कोशिश करो एक किसी छुट्टी के दिन बनाए प्रोग्राम, पागल हो जाओगे। ये क्या, ये नहीं हो सकता आपसे। वो तो बाबा जी का जैसा हो गया, हम लोग से नहीं हो सकता। हम लोग जब प्रभुपाद जितने किया उतना कर लो, काफ़ी है। सोने वाला ढंग से करो, फिर पूरे दिन कुछ कृष्ण की सेवा में लगे रहो, ठीक है। तो जो प्योर भक्ति में जो जप होता है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज द हाईएस्ट टेस्ट। सो 3 मोड्स को भी स्टडी करेंगे। चैप्टर शुरू हो रहा है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।